Hello children, welcome to MBN's Academy. Today I am discussing some important questions of the first chapter of class 12 English Literature. The chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet. You can expect three types of questions from this chapter. One is an extract based question, another is a short answer type question, and a long answer type question. Now, coming to the extract based question, it may contain a few lines or a passage, and out of which 4 questions will be asked for 8 marks. And so, for this, you should read the chapter properly, and you can also refer to my explanation of the chapter in detail. Now, let us discuss some short questions based on this chapter. These questions are of 2 marks each. Now, first question, what was Franz expected to be prepared with for school that day and why was he in a great dread of scolding? फ्रांस को उस दिन स्कूल में कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके जाना था और वो डांट से क्यों डरते थे? That is a question. Now, coming to the answer, Franz was expected to be prepared with the grammar questions on participles because his teacher M. Hamel had said that he would question the class on participles. But he did not know even the first letter about it, so he was in a great dread of scolding by his teacher. फ्रांस को उस दिन ग्रामर के क्वेश्चंस दैट इज़ कौन से टॉपिक हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रिपेयर करके जाना था क्योंकि उनके टीचर एम हैमल ने बोला था कि उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे क्लास में लेकिन फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट लेटर भी याद नहीं था तो इसलिए उनको ये डर था कि उनका टीचर उन्हें स्कोल्ड करेंगे. Now coming to the second question, what was the unusual thing that Franz noticed about the school that day? कौन सा unusual या असामान्य चीज़ था जिसको फ्रांस ने नोटिस किया था उस दिन स्कूल में? Now answer, Franz noticed that the school was unusually quiet. He felt the absence of the usual commotion of opening and closing of desk, of lessons repeated in unison, and the rapping of teacher's huge ruler on the table. This unusual silence made Franz feel that everything was still and quiet as a Sunday morning. फ्रांस ने ये नोटिस किया था कि उस दिन अनयूजुअल या सामान्य रूप से बहुत शांति था स्कूल में और वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं था क्लोजिंग ऑफ डेस्क और न ओपनिंग ऑफ डेस्क जो बच्चे एक साथ अपने लेसन्स रिपीट करते थे वो भी नहीं है और टीचर अपने ह्यूज रूलर से टेबल पर मारते थे वो भी नहीं है. सो ये सारे जो अनयूजुअल साइलेंस है उसको लेकर के फ्रांस को लग रहा था कि जैसे वो एक संडे मॉर्निंग है इसलिए क्योंकि संडे मॉर्निंग तो बहुत स्टिल एंड क्वाइट होते हैं ओके तो इसलिए उनको संडे मॉर्निंग के जैसे लग रहे थे. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस? जो ऑर्डर बर्लिन से आया था उसको फ्रांस ने थंडर क्लैप बोला है. थंडर क्लैप का मतलब है समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग. M. Hamel told the children in a gentle tone that it was their last French lesson and that the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine from the next day. This announcement was like a thunderclap to Franz because from the next day he would be taught German and will be deprived of learning his mother tongue. एम हैमल को ये बताया गया, एम हैमल ने बच्चों को बहुत जेंटल टोन में ये बताया कि ये आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है और बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. और ये अनाउंसमेंट उनको बहुत शॉकिंग इसलिए लग रहा था क्योंकि अभी नेक्स्ट डे से वो अपना मदर टंग नहीं पढ़ सकते और उनको एक फॉरेन लैंग्वेज दैट इज़ जर्मन पढ़ना पड़ेगा. Now coming to question number 4, how did M. Hamel bid farewell to his students and the people of the town? M. Hamel ने बच्चों के साथ और वहाँ उस टाउन के लोगों के साथ कैसे विदाई किया? Now M. Hamel wore his formal suit on the day of his last lesson.
He was like a mentor and advised the villagers and the children to safeguard their language. He wrote Vive la France, meaning long live France, in order to arouse a feeling of patriotism by guarding their language, as it was the only way to free oneself from the prison of slavery. एम हैमल उस दिन अपना औपचारिक वस्त्र पहने हुए थे क्योंकि उस दिन उनका लास्ट लेसन था एंड वो एक मेंटर के जैसे विलेजर्स को और बच्चों को यह एडवाइस दिया कि उन्हें अपने लैंग्वेज की रक्षा करना चाहिए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया कि विवे ला फ्रांस। इसका मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ये इसलिए लिखा था ताकि वो लोगों के अंदर देश प्रेम को जगा दें और जब तक लोग अपने लैंग्वेज को गार्ड नहीं करेंगे, लैंग्वेज की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक वो गुलामी ही रहेंगे। तो अपना अपने लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो प्रिसन से एस्केप करना, जो स्लेवरी का जो प्रिसन है, जो गुलामी का जो प्रिसन है, उससे एस्केप करने का एक की है। Now coming to the long answer question. Now the first question is, our native language is a part of our culture and we are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and M. Hamel's last lesson show their love for French? हमारा जो मातृभाषा है वो हमारे संस्कृति का एक पार्ट है और हमें उस पर गर्व भी है। अभी विलेज एल्डर्स भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एम हैमल अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं। उन दोनों ने अपने लैंग्वेज फ्रेंच के प्रति अपना प्यार कैसे व्यक्त किया है, यही है क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द आंसर, our native language is not only a part of our culture but a component of our culture that makes it unique and specific. This is truly depicted by the presence of village elders in the classroom to attend the last lesson of M. Hamel. सो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारा जो मातृभाषा है, वो संस्कृति का ही पार्ट नहीं है लेकिन संस्कृति का एक अंग है जो उसे अद्वितीय और विशिष्ट बना देते हैं। और ये बात इस बात से हमें स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं क्योंकि विलेज एल्डर्स भी उस दिन एम हैमल के लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं। They felt sad and sorry for not having gone to school and is full of regretfulness for neglecting their native language French. They understood the value only when they have been deprived of learning it. Their presence was also their way of thanking their master M. Hamel for his 40 years of faithful service. सो अभी विलेजर्स जो बैठे हुए थे वो दुखी भी था और सॉरी भी फील हो रहे थे उन्हें कि उन्होंने स्कूल अभी तक अटेंड नहीं किया है और वो पूरे पश्चाताप के साथ अपने लापरवाही की और उनकी लापरवाही क्या था, उनका लापरवाही यही था कि उन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच को इग्नोर किया था। लेकिन अभी उन्हें उनका वैल्यू समझ में आ गया जब उनको मना किया था वो लर्न करने के लिए, और इसलिए भी वहाँ आकर बैठे हुए थे ताकि वो एम हैमल को अपने सर्विस के लिए 40 इयर्स का वफादार सर्विस जो उन्होंने निभाया था उसके लिए धन्यवाद देना भी चाहते थे वो लोग। In the role of a mentor, Hamel advised them to safeguard and preserve French, the most beautiful and logical language in the world. And knowing the mother tongue well is good because with it you can fight domination. Thus, the villagers realized the worth of their native language when they came to know that they had lost it. So, हैमल का रोल यहाँ पर एक मेंटर का था और वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि अपने लैंग्वेज की रक्षा कैसे करें क्योंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज है सबसे सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। और अगर आप अपने मदर टंग बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं तो आप किसी भी तरह का अधिकार के साथ लड़ाई कर सकते हैं, किसी भी तरह के डोमिनेशन के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं। और जब विलेजर्स को अपने नेटिव लैंग्वेज के वैल्यू के बारे में पता चला तब तक तो उनके हाथ से वो खो गए थे।